everybody. This is Samajit Roy. A very, very warm welcome to each and everybody, all our elders at the Elder Hour at Imoha. A very, very warm good evening to each one of you. As you know, today is now the 6th week of the Elder Hour. We started this journey on the 15th of June. हमने 15 जून आप सबके साथ ये सफर तय किया था that we dedicate 1 hour every day to our dear elders. And we are now on to our 6th Saturday. We celebrate 1 hour, and every day we bring to you some fun activity events which makes our life more and more interesting, more enriching. And today I am very, very honored to welcome on the show somebody who I have huge respect for, a gentleman who everybody in the country who has anything to do with health and Ayurveda is very, very well aware of. And today we have with us Dr. Pratap Chauhan. Dr. Chauhan, very, very warm welcome to you. Thank you. Namaskar ji. Thank you. Good evening, everyone. Thank you so much, Dr. Chauhan, for coming to the show. As I was telling you earlier, it's a huge honor. And I think for many of our elders who are listening to the show on the live streaming, as well as those who are on the panel, I would definitely want to say that it is not every day that we get to have such an august and such a knowledgeable person who's there with us to share his experience. And it is this experience that really can transform our lives and the lives of our elders. So before I hand over to Dr. Chauhan, a little quick introduction, although I think if I were to do justice to the introduction, it will take an hour. But if I can take a few minutes to introduce Dr. Chauhan. Dr. Chauhan is an author, he's a public speaker, an educator, a TV personality, and a master Ayurvedic physician. He's currently serving as a director to Jiva Ayurveda and spearheads all its medical and pharmaceutical activities. His TV shows, Jiva Health Show and Sanjeevani. I'm sure many of our elders have seen you, Dr. Chauhan, actively on the Jiva shows on various TV channels. And these are broadcasted on leading channels across Care World, Tej News, News 24, and has more than 35 million people watching them. I know the amount of travel that you do. I know it's obviously because of COVID that you are in town, but otherwise, I think you are pretty much all across the year traveling across the world, and has been one of the most traveled Ayurveda practitioners, spreading the knowledge and wisdom of this very unique philosophy and a way of life. Dr. Chauhan started his first Ayurvedic website, jiva.com, in 1995, and is the only Ayurvedic doctor to have won the prestigious World Summit Award given by the United Nations for his TeleDoc project, another very innovative project. And as the founder director of Jiva Ayurveda, the company runs more than 80 clinics all over the country, the world's largest Ayurveda telemedicine center, and consults over 8,000 patients a day. What I found most amazing and most, feeling up almost like a national pride, I would say, Dr. Saab, is the fact that Doctor has established schools in Japan, France, Poland, Lithuania, and is also a lifetime Ashoka Fellow. For many of us who are into data and technology, I think Dr. Saab should also share with us some of the deeper insights that he's been able to get on big data analysis. आजकल big data का बड़ा प्रचलन है, and ML and AI and all these words are very popular. And I think to see AI and ML getting into Ayurveda is really, really something which I find fascinating. He is also awarded the best Ayurvedic physician by the Hakim Azmal Khan Society, and was later invited to meet late Dr. APJ Abdul Kalam, the former president of India. He is a lifetime Ashoka Fellow. Dr. Saab, really, really pleasure to have you on the show. And welcome to the Imoha family and the Imoha community. जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, ये एक elders की community है, online community है. At the same time, we are physically present in multiple places in the country. We have many, many elders who believe a lot in Ayurveda and practice Ayurveda in different formats. And today in Elder Hour, we would love to know more about yourself, more about Ayurveda, and I would say start a journey for how Jiva and Imoha together can transform
something which is common in both of our lives. इमोहा में डॉक्टर साहब अगर आप इमोहा को टर्न अराउंड करेंगे वो अ होम बनता है, हाँ क्योंकि जी, हमारा बिलीफ है कि हर घर में an elder wants to stay in their own home for as long as they want. आप कोई मरीज जब हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो कहते हैं बेटा मैं अब घर जाना चाहता हूँ, या कोई फ्लोरिडा में बहुत बड़े मकान में रहते हैं वो कहते हैं अब हो गया, यूएस बहुत हो गया, अब मैं ना अपने घर में भोपाल में जाना चाहता हूँ. So the home is a very important place because it's about emotional happiness in your own home. And I know that at Jiva, it's also about the mission is about high quality, authentic Ayurveda to every home. So there is a common, string here between Imoha and Jiva about delivering care and delivering Ayurveda to every home in the country. And we obviously work with elders. So before we go further, बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप बता सकते हैं कि आपका जो जर्नी है जी। उसमें हम कहते हैं कि एवरी स्पाउस इज देयर फॉर अ पर्सन्स लाइफ. आपके जिंदगी में ऐसा कोई एल्डर है जिनके हु हैज बीन बिहाइंड यू, हु हैज बीन मोटिवेटिंग यू इन योर जर्नी? जी, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. इट्स ऑनर इज माइन टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. और एल्डरली जो लोग होते हैं हमारे परिवार में, उनका नॉट ओनली दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जो सबसे अच्छी चीज उनके पास होती है, विच आई स्ट्रांगली बिलीव इन, इज देयर लव एंड कंपैशन, जिसको हम आशीर्वाद भी बोलते हैं, गुड विशेस बोलते हैं, बिल्कुल. या उनकी दुआएं बोलते हैं, वो बहुत पावरफुल होती है. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इसको बहुत एक्सपीरियंस किया है. ऑफ कोर्स आई बिलोंग टू ए विलेज, स्मॉल विलेज विच इज नियर फरीदाबाद. मेरे माता पिता दोनों जो हैं वो छोटा खेती बाड़ी का काम करते थे, एग्रीकल्चर. माय फादर इज नो मोर बट माय मदर इज स्टिल देयर. शी इज अराउंड 87 years नाउ. तो डेफिनेटली वेरी नाइस. the kind of I would say my values I learned from them. बहुत सरल सिंपल जीवन उनका था, but they were like very honest, very much devoted to their goal, whatever they were doing, what जो भी रोल उनका था लाइफ में. और एक चीज उनसे सीखने को जो मिली बचपन में ही, कि जो भी काम करें किसी को दुख ना पहुंचे. डोंट हर्ट एनीवन, डोंट चीट एनीवन. किसी का भला हो सके तो अच्छा है. and that's what we still in Jiva. आप आएंगे जब, you will see like how that's how we train our staff, our employees with the same values. So definitely I would say मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा जो एक रोल एल्डरली रहा है वो मेरे पेरेंट्स का रहा. And then second is my elder brother, who is like also he's about 10 years elder to me. So but he's been the guiding force, or मे बी मैं कहूँ कि मेरे पीछे जो भी इंजन, जो मेरे आगे इंजन जो है वो है. और I just have to do my job and rest he takes care of everything. It was he who actually in fact I would say two brothers, एक वो हैं, एक और दूसरे ब्रदर हैं, वो उनसे छोटे. वो दोनों इंजीनियर्स हैं, but they both were like very much important for shaping my life. क्योंकि जब मैंने आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया, वन ऑफ देम जो छोटे वाले हैं वो वृंदावन में रहते हैं. ही इज एक्चुअली IIT MTech, बट ही डिसाइडेड टू क्विट हिज जॉब इन अमेरिका way back in 1982 or something, and then he came back to it. And then he just decided के कुछ अलग काम करना है. And that's when we all three decided के कुछ अलग करना है इस जीवन में. We don't want to go to the same route as everybody is going. So that's when we conceived Jiva, which works in three areas. One is school education. We have done a lot of work to change the education system. Then second is Ayurveda, whereas we call it health. So health through Ayurveda, and health doesn't mean it's only for sick people. Ayurveda is for everybody. And third is spirituality. तो ये दो लोग, ये मैं इनको श्रेय दूंगा कि they have definitely played a very elderly role in my life. आज भी मुझे कोई तकलीफ होती है तो I can just go to them. They guide me, they support me, they motivate me. कहीं पर कुछ कभी down feeling आती है. And then I was fortunate to find two amazing gurus. एक मेरे आयुर्वेदिक गुरु थे, अभी दोनों नहीं है फिजिकली, वैद्य नानक जी शर्मा जी, जो कि दिल्ली में काफी फेमस वैद्य थे. So when I was studying in Delhi University Ayurvedic College, I was
not very much, really satisfied the way the institutional knowledge was there. That was quite institutional, but I knew that Ayurveda is a shastra. It's It's a a practical knowledge. एक ही हमारा वैदिक शास्त्र है, और मुझे ये पता था कि कहीं ना कहीं कोई गुरु तो एक हम मेरे को ढूंढना पड़ेगा. तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट. सेकेंड ईयर में मैं जब था तो आई फाउंड माई आयुर्वेदिक गुरु, एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, जब तक मेरा कॉलेज फिनिश हुआ, ऑलमोस्ट 3.5 साल, एवरी डे आई यूज्ड टू गो टू हिज क्लिनिक एंड सिट विद हिम, एंड ही यूज्ड टू गाइड मी. वो पुड़िया बनाते थे हम चूर्ण की, जो उस तरह का पुराना सिस्टम था. And then after I finished my degree, I requested him to give me diksha लेते हैं ना पढ़ने के लिए. तो then he initiated me, not immediately, थोड़ा उन्होंने टेस्ट लिया मेरा कुछ महीनों का, and then he initiated me. फिर मैं 5 साल उनके पास गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ा आयुर्वेद. So I have the experience of studying both the institutional as well as the traditional style. And then वृंदावन में जब कनेक्शन बना तो आई फाउंड ए स्पिरिचुअल गुरु, श्री हरिदास शास्त्री महाराज, एंड ही गाइडेड मी लॉट थ्रू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. जब हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं तो समटाइम्स पीपल थिंक दिस इज सम काइंड ऑफ रिलीजन. और नो, इट्स नॉट रिलीजन. स्पिरिचुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ अस, बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज ए सोल. जैसे बॉडी से रिलेटेड चीज को हम फिजिकल बोलते हैं, माइंड से रिलेटेड है मेंटल या साइकोलॉजिकल, स्पिरिट या सोल से रिलेटेड स्पिरिचुअल. So this is, these are some of, I have quite a few, elderly people in my life. और मैं ऐसा मानता हूँ कि होना चाहिए, हर एक की लाइफ में होना चाहिए. और I really enjoy working with the elderly people, even when I go to different countries. अभी I remember, अभी 3 साल पहले मैंने पोलैंड में एक यूनिवर्सिटी के साथ काम किया था. And that university is only for elderly people. There's people who are retired more than 60. They have special classes. They learn different things. So I used to teach them Ayurveda. It was very interesting. Wow. And yeah, I think this is what I strongly, as I said in the beginning, मेरा strong belief है कि आपके ऊपर किसी बुजुर्ग का अगर हाथ है तो सफलता जरूर मिलेगी. सफलता does not mean only monetary सफलता. There is satisfaction. Yes, absolutely. You feel happy. You feel satisfaction that I have done something very good in my life. नहीं, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब. हमारे यहाँ पे हम इमोहा के बीच में जो 3 शब्द है, मोह, we believe a lot in this मोह which we call मोहब्बत for elders. तो हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, अनलेस एंड अनटिल उनके दिल में मोह है फॉर एल्डर्स, दे कांट वर्क. बिकॉज जैसे कोविड का टाइम हो गया या इस तरह के टाइम पीरियड में देयर इज नो टाइम, देयर इज नो 24/7, 7 days a week, anything could happen to an elder any point of time. And therefore जो लोग काम करते हैं ऐसे फील्ड में, आयुर्वेदा हो गया, एल्डर केयर हो गया, ऐसे फील्ड्स में unless the passion is internal, unless you work for blessings, it doesn't work. Yeah. So lovely to hear about जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके गुरुजी हैं, and all the elders in your life. Tell us a little bit more about the trio. आयुर्वेदा में हर चीज एक ट्रायंगल के तरह से बनता है. I'm sure you will talk us a little bit more about the triangles in Ayurveda. Yeah. But I think in somewhere आपके जिंदगी में भी जो ट्रायो है, 3 भाई का जो एक स्टेबिलिटी है. आई थिंक कहते हैं कि आई कम फ्रॉम आर्किटेक्चरल अर्बन प्लानिंग बैकग्राउंड. तो हमारे यहाँ पे सिंगल लाइन गिर जाता है, डबल भी फॉल कर सकता है, ट्रायंगल स्टेबल हो जाती है. द मोमेंट इट इज अ ट्रायंगल, it becomes a stable structure. Yeah. So tell us a little bit more about how this triangle got formed. I think a little bit more stories about it. It's a very good observation that you have made. बहुत कम लोग शायद इतने डिटेल में जाते हैं. So the triad or the trio or the triangle जिस भी कहें, तो पहला तो जो 3 चीजें हैं जो हमारे इस पूरे सिस्टम को बनाती हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल. हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद में कि बॉडी, माइंड एंड सोल का एक ट्राइपॉड है ये. और ट्राइपॉड में इफ यू वांट टू कीप इट स्टेबल, तो देन ऑल द 3 legs have to be strong. Balance बहुत जरूरी है. और आयुर्वेद is all about balance. Ayurveda is just about balance. If I say in one line that Ayurveda is a science of balance,
whenever you lose your balance, you are called that you have a disease. और हम लोग चिकित्सा जब करते हैं तो क्या करते हैं, we bring you back into balance. हमारी जितनी भी चिकित्सा है, चाहे वो हर्ब है, चाहे वो हमारा पंचकर्म है, चाहे हम आपको डाइट बताते हैं या कोई ब्रीदिंग बताते हैं या कोई एक्सरसाइज बताते हैं. So looking at you that what has gone out of balance, we prescribe you a treatment protocol. और वो उसका पर्पज यही होता है कि वापस आपके बैलेंस को ले आना, चाहे बॉडी माइंड सोल. इम्बैलेंस कहीं पर भी हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरली कि बॉडी में ही आपकी बीमारी है. अभी तो ये काफी कुछ मॉडर्न साइंस में भी ये मानने लगे हैं लोग कि माइंड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. तो ये जो ये ट्रायो जो है यहाँ से शुरू होता है. फिर इसके 3 सपोर्टिंग पिलर्स हैं. बड़ा इजी है आयुर्वेद. अगर आप थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है. देखिए 3 तो पिलर हो गए, उनके 3 सपोर्टिंग पिलर्स, उसको उपस्तंभ बोलते हैं. एक स्तंभ है, एक उपस्तंभ है, सब पिलर्स या सपोर्टिंग पिलर. वो सिंपल है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य. इसका मतलब क्या है? फूड, स्लीप and celibacy is the word for brahmacharya, but it actually means living a life which is full controlled life, correct, regulated, balanced life, regulation, control, balance. This is ये इसका ये मतलब होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर हम इसको जोड़ें तो फूड का वैसे तो तीनों पर इम्पैक्ट होता है. अगर आप खाना खाते हैं तो इट्स नॉट ओनली फॉर द बॉडी. हम लोग कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन. तो वो आपका माइंड को भी आपके भोजन से ही नरिशमेंट मिलता है. और व्हेन वी से भोजन इन आयुर्वेदा, इट्स नॉट व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू वॉच, व्हाट यू हियर, व्हाट यू स्मेल, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू रीड, एंड नॉट ओनली दैट, द काइंड ऑफ एसोसिएशन यू हैव, काइंड ऑफ पीपल विद हुम यू हैंग आउट, ये सब आपका भोजन है. तो बहुत बढ़िया. बट प्राइमरीली फूड इज कनेक्टेड विद बॉडी, sleep is connected with mind, because we say that sleep is the diet of the mind. बहुत सारे लोग हमारे जो यहाँ प्रिय लोग हैं, हमारे लवली पीपल आउट हियर, कई लोगों को नींद की प्रॉब्लम रहती है. Correct. और नींद की प्रॉब्लम का कारण होता है माइंड में कोई एंजाइटी, टेंशन, और वाइसी वर्सा. नींद अच्छी नहीं आएगी तो माइंड आपका जो है शांत नहीं रहेगा. और तीसरा जो आपने कहा रेगुलेशन, अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन, उसको हम सोल से जोड़ते हैं. जब हम हायर पर्पस ऑफ लाइफ को समझना चाहते हैं, विच इज एक्चुअली आपकी जो एज है अभी, अगर हम अपने शास्त्रों के हिसाब से जाएं तो उसमें 4 आश्रम बनाए थे वहां पर. फर्स्ट वाज स्टूडेंट लाइफ, जिसको हम ब्रह्मचारी बोलते थे, स्टूडेंट लाइफ. देन गृहस्थ, हाउस होल्डर्स, एंड देन वानप्रस्था इज व्हेन यू स्टार्ट डिटैचिंग फ्रॉम द मटेरियल थिंग्स, एंड फाइनली यू जस्ट रियलाइज दैट आई एम द सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, बिकॉज एनीवे आफ्टर फ्यू इयर्स द बॉडी हैज टू बी लेफ्ट. लेकिन I will never die, I will never die, I will never become old, I am always young and beautiful, I am always free from all miseries. जब ये realization हमें हो जाती है, that's the end of everything. Then you are in bliss, you are in eternal bliss, आनंद जिसको बोलते हैं. और ये ह्यूमन को एक्चुअली इसीलिए मिली है. तो बॉडी, माइंड, सोल तीनों को हमें स्वस्थ रखना है, और उनके लिए आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, फूड, लाइफ एंड रेगुलेशन, कंट्रोल, ये है. फिर इसके आगे जाएं तो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ. इन्हीं का पूरा खेल है. These are 3 energies you must understand. Very simple, बहुत सरल है, कोई भी समझ जाएगा. वात is that energy which is responsible for movement. जो भी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, कुछ भी, ब्लड सर्कुलेशन है, फूड का मूवमेंट है, या फिर जो है नर्व इंपल्सेस चल रही हैं, कोई भी चीज, दिस इज कंट्रोल्ड बाय वात. इसको वात कंट्रोल करता है. पित्त जो है वो एनर्जी है जो मेटाबॉलिज्म, खाना पचाती है, देन बोन्स बनती हैं, मसल्स बनती हैं, टिश्यूज बनती हैं, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है. और तीसरा है कफ. कफ का मेन काम है सबको जोड़ करके रखना. तो मैं कई बार ऐसा कहता हूँ, वात हमारी मात है, वाता इज द मदर, वात हमारी मात है, पित्त हमारे पिता, कफ हमारे दादू हैं, फिर काहे की चिंता. सब अपने ही लोग हैं, नहीं है सब. देखिए वात, अगर माँ जो है वही घर को चलाती है, किसी दिन माँ बीमार पड़ जाए सब बंद हो जाता है. चीज वात ऐसे समझ, आपको याद करने में इजी रहेगा. जो पिताजी होते हैं घर में,
उनका जॉब होता है पैसा कमाना, उससे कुछ सब्जियां खरीदना, कपड़े, तो वो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन जितना होता है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म। और दादू जो होते हैं ना, जो एल्डरली है, वो उनका एक ही गोल होता है बांध कि के रखते हैं। सब बाल बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन सब इकट्ठे रहें, सब प्यार से रहें, उनका यही सो गोल। ब्यूटीफुल। तो दिस इज वात पित्त कफ। इसके आगे जाएंगे तो माइंड में भी 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण क्या है? जो हमारे माइंड को स्वस्थ करता है, माइंड को रिलैक्स रखता है। whenever your mind is peaceful, whenever your mind is calm, that is what is called a happy mind. और रजस का क्या काम है? रजस जो है माइंड को एजिटेट करता है। आप घर में आराम से बैठे हैं, बिल्कुल प्रसन्न हैं, अचानक से कुछ विचार आ गया, किसी का आ गया, बच्चे का विचार आ गया, किसी का कुछ तो आपका माइंड एजिटेट हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो दैट मीन्स नाउ योर माइंड इज नॉट हैप्पी। इसको अनहेल्दी माइंड बोलते हैं। आजकल तो हम सुबह से शाम तक एजिटेट ही करते रहते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल उठाएंगे, फिर व्हाट्सएप में जाएंगे, फिर फेसबुक में जाएंगे, फिर टीवी ऑन करेंगे। वी आर कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग टू बिकम राजसिक। तो इसलिए सब लोग दुखी हैं, सबको एंजाइटी है, सबको टेंशन है। अब इसीलिए विदेशों में जाइए, मेडिटेशन कर रहे हैं लोग। व्हाट इज मेडिटेशन? दे ट्राइंग टू काम डाउन देयर माइंड, दैट्स ऑल। ब्रीदिंग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम is just connected with your mind. The more slowly you breathe, the more calm is your mind. माइंड के लेवल पर जो हेल्थ है, बॉडी के लेवल पर हेल्थ क्या है? वात पित्त कफ का बैलेंस, तीनों बैलेंस तरीके से तीनों एनर्जी अपना काम कर रही है। जब वो बिगड़ जाएंगी, नाराज हो जाएंगी, तो रोग आएगा। वात से 80 टाइप के रोग होते हैं, 80 टाइप्स ऑफ डिजीज। पित्त से जो है 40 टाइप्स, और कफ से 20 टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं। माइंड के लेवल पर सत्व गुण इज द स्टेट ऑफ हेल्थ। जितना आपके माइंड के अंदर सत्व गुण डोमिनेट होगा, उतना आपका माइंड हेल्दी होगा। इसीलिए हम बोलते हैं सात्विक भोजन खाइए, सात्विक चीजें देखिए, सात्विक चीजें सुनिए। एंड व्हाट इज सात्विक? एनीथिंग दैट मेक्स योर माइंड पीसफुल, एनीथिंग दैट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, एजिटेशन, एंग्जाइटी इज राजसिक, दैट इज नॉट गुड। उसको हम कहते हैं ये दोष है, ये बीमारी करने वाला है। एंड तामसिक उससे भी ज्यादा है। तामसिक इज व्हेन योर माइंड इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। आपको कुछ नहीं, ना कुछ समझ आता है, ना कुछ आप देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, बिल्कुल ब्लॉक हो गया। इग्नोरेंस जिसको बोलते हैं, डार्कनेस जिसको बोलते हैं। जैसे हम बहुत गहरी नींद में जब होते हैं, तो दैट इज, गहरी नींद इज बिकॉज ऑफ तमस। जब हमारा माइंड तमस से कवर हो जाता है तो हम सो जाते हैं। लेकिन आजकल हम जो है जागृत अवस्था में ही सोए हुए हैं। And very interestingly, in Ayurveda, they say that the root cause of all disease is pragya parad. Pragya means buddhi. Aparad means offense, offending your intelligence. देखिए, when I am saying that जागृत अवस्था में हम सोए हुए हैं, it's because we are not using our intelligence. Everybody has intelligence. There are so many people, आप लोग में से भी कुछ होंगे या देखे होंगे आपने, एक गोली खाते हैं एसिडिटी की रोज, एंटासिड, मॉर्निंग में, 5 मिनट बाद चाय पी लेते हैं। What is this? If you have acidity and you're taking antacid, that's quite intelligent. I agree. But then why are you putting acid? या आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप पिछले 10 साल से एक गोली रोज खाए जा रहे हैं। Have you ever used your intelligence कि ब्लड प्रेशर क्यों हुआ, डायबिटीज क्यों हुई? All these are called lifestyle diseases. आपने नाम सुना होगा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं। नंबर 1 वर्ल्ड में आज लाइफस्टाइल डिजीज है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, द कॉज ऑफ माय प्रॉब्लम इज माय लाइफस्टाइल। सो व्हाई आई एम टेकिंग अ पिल एवरी डे? आई शुड चेंज माय लाइफस्टाइल। आई शुड फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विद माय लाइफस्टाइल। अगर मैं 12 बजे सोता हूँ रात को और मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ, तो दिस इज नॉट द डिजाइन ऑफ माय बॉडी। आप अगर जंगल में जाएंगे, कितने सारे जानवर, मैं कभी कभार साउथ अफ्रीका जब जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो आई लाइक टू गो टू सफारी। 7-8 दिन में जाता हूँ, थोड़ा जंगल में रहता हूँ जाकर। आई हैव नेवर सीन एनी हॉस्पिटल देयर। देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ एनिमल्स देयर। सब लोग शांति से रहते हैं, आराम से रहते हैं, जो भी उनका नियम है। रात को सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, जितनी भूख होती है उतना ही खाते हैं, उनको ज्यादा स्टोर नहीं करते। तो दिस इज व्हाट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर डिजाइन, मेरे शरीर का।
आयुर्वेद का पहला प्रिंसिपल यही है कि हर आदमी को अपनी प्रकृति समझनी है। कुछ लोग वात प्रकृति के दुबले पतले हैं, कुछ लोग कफ प्रकृति के थोड़े हैवी हैं, कुछ लोग पित्त वाले हैं। इफ यू डोंट नो व्हाट प्रकृति यू हैव, देन यू मे बी ईटिंग रॉन्ग फूड्स। जैसे आपके पास गाड़ी होती है, you should know what kind of car you have. Is it a diesel car, petrol car, electric car, or CNG? You cannot put diesel in a petrol car. This is the biggest pragya parad we all make, that I eat everything and I'm still eating those things which I was eating when I was 25. You're no more 25. Your system has changed. Your Agni is not so strong. So this is what Ayurveda teaches. Ayurveda is an amazing knowledge. इट टीचेज अस, यहाँ से आयुर्वेद शुरू होता है कि मैं कौन से टाइप की कार हूं। देखिए कार का उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो आपके पास अगर कार होती है तो हर 6 महीने पर सर्विसिंग कराते हैं ना उसको। इसकी कभी सर्विसिंग कराई आपने? दिस इज प्रज्ञा पराग। सब चीज को साफ करते हैं हम घर में, इसकी कभी सफाई नहीं करते, इसके अंदर डालते रहते हैं। तो इसलिए हमने जीवाग्राम बनाया। जीवाग्राम को मैं कहता हूं इट इज आवर आयुर्वेदिक गैराज। You can come, we will wash you from inside, we will change your oil and everything, we will make you new. And Dr. Saab, I understand that the journey of Jiva also started from a garage, correct? That's true. A lot of the journey started from the garage and you transferred it from a vehicular garage to a human garage. That's quite interesting. बिल्कुल। देखिए सौम्यजीत जी, जो मैंने जब शुरू किया काम, तो मेरे गुरुजी ने मेरे को कहा बेटा तुम काम शुरू कर दो। मैं कहा सर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं एक फर्नीचर नहीं खरीद सकता। तो ही टोल्ड मी आप मेरे से दवाई लेके जाओ। तो ही गेव मी, मेरे को याद है भी, एक थैले में मेरी सारी दवाइयाँ आ जाती थी। 2500 रुपए की उन्होंने मुझे दवाई दी थी। वो 2500 भी उन्होंने मुझे कृपा की, मेरे से लिए नहीं, कहते ले जाओ। और वो मैंने जब अपना गैराज में क्लिनिक शुरू किया, दैट वाज वेरी टफ टाइम, बिकॉज दोज डेज पीपल यूज्ड टू थिंक कि कोई वैद्य जो होता है वो बुजुर्ग आदमी होता है। तो आई यूज्ड टू एक्चुअली लिटरली वेयर धोती कुर्ता और मैं तिलक विलक भी लगाता था। बट इवन व्हेन पीपल यूज्ड टू कम टू माय क्लिनिक, वो बोलते थे कि आपके पिताजी से मिलना है, कहाँ मिलेंगे वो? तो मैं कहता, एंड देन मैं 6 दिन जो है अपना क्लिनिक करता था अपने गैराज में फरीदाबाद में। ऑन 7th डे I used to pack up all the medicines in a bag and I used to go to वृंदावन। बस पकड़ के फरीदाबाद से वृंदावन जाता था। वहां पर एक इस्कॉन का मंदिर है जिसको, जहाँ पर फॉरेनर्स बहुत आते हैं, जो हरे कृष्णा वालों का इस्कॉन मंदिर है। तो वहां में संडे को फ्री कंसल्टेशन देता था। तो बहुत सारे फॉरेनर्स के संपर्क में आए और ये 92 में मैंने क्लिनिक शुरू किया था। 94 में एक बहुत बड़े जर्मनी के उनके स्वामी जी थे इस्कॉन के, उनको मैंने ठीक किया था। तो वो कहने लगे कि आप जो है यूरोप में आ जाओ पढ़ाने के लिए। मैंने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है टिकट के लिए। कह रहे हम आपका टिकट देंगे, सब देंगे। सो 94 आई वेंट फर्स्ट टाइम आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड आई वेंट टू फ्रांस, इंग्लैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। वहां से जब मैं वापस आया तो आई फेल्ट के केवल भारत को ही जरूरत नहीं है आयुर्वेद की, पूरे विश्व को जरूरत है। सो दैट इज व्हेन आई कैसे कर सकते हैं। तो मैंने फिर वर्ल्ड की पहली आयुर्वेदिक वेबसाइट 95 में बनाई। उस टाइम इंटरनेट कुछ कोई लोग जानते नहीं थे। उसके बाद जर्नी चलती गई। पहले 96 में ऑनलाइन कॉलेज बनाया वर्ल्ड का फर्स्ट। फिर 97 में जैसे आज अभी वेबिनार कर रहे हैं, उस टाइम तो ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, बट आई गेव द फर्स्ट आयुर्वेदिक वेबिनार इन 97। स्वीडन में स्टूडेंट्स बैठे थे और आई हैड टू गो टू VSNL स्टूडियो। उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते थे उन दिनों में। तो एक स्पेशल इक्विपमेंट था, उससे जुड़ करके मैं यहाँ बैठा था दिल्ली में, वो वहाँ बैठे थे स्टूडेंट्स। और फिर ये चलता गया, काफी देशों में मैंने ट्रेवल किया। आई स्टार्टेड ऑनलाइन कंसल्टेशन, जो आज टेलीमेडिसिन हमारा है, जहाँ हम लगभग 350 डॉक्टर्स आज जीवा में हैं। हम वीडियो के माध्यम से, फोन के माध्यम से, हमारी 80 क्लिनिक्स हैं। हर क्लिनिक पर जो है क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। जीवाग्राम बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और इसके साथ साथ फिर जब मैंने ये देखा कि पूरे वर्ल्ड से मैं कंसल्टेशन कर रहा था, 100 देशों से अधिक के पेशेंट आज भी हैं और उस टाइम भी थे। बट देन आई थॉट हाउ कैन आई हेल्प द पीपल इन रूरल इंडिया। वो गरीब लोग हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, मैं उनके पास इंटरनेट भी नहीं है। तो 2003 में मैंने मोबाइल ऐप बनाई, फर्स्ट ऐप ऑन ए नॉन स्मार्टफोन। स्मार्टफोन नहीं होते थे उस टाइम,
जावा एप्लीकेशन कुछ लगा करके एक ऐप बनाया, उसमें क्वेश्चनर डाला, एक लड़के को स्कूटर पे भेजते थे गांव में, जो भी बीमार होता था उसका वो हिस्ट्री लेता था उसमें, वो मेरे कंप्यूटर क्या पर, बात है। एंड दैट्स नेक्स्ट डे ही वुड गो एंड डिलीवर द मेडिसिन। तो काफी मजेदार जर्नी रही है। और अभी भी जो, जैसे आपने बिग डेटा की बात की, तो हमने आज हमारे जीवा में जो है 25 लाख पेशेंट्स का डेटाबेस है। हमने बिग डेटा एनालिसिस एक पब्लिश किया था पेपर, जिसमें 6.5 लाख पेशेंट्स का डेटा हमने पब्लिश किया था एक यूरोपियन जर्नल में। और जीवा इज द वाह। ओनली कंपनी वेयर एवरी डॉक्टर वर्क्स थ्रू ए प्रोटोकॉल। जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आएगा तो एक हमने पूरा एक सिस्टम बनाया है कि आपने जो क्वेश्चन बताया कि जोड़ों में दर्द है, बट जोड़ों में दर्द इज ए वेरी कॉमन टर्म, कौन से टाइप का है, वात से है, पित्त से है, कफ से है। अगर मैं ये नहीं पता लगाऊंगा तो मैं आपका इलाज नहीं कर पा सकूंगा, कोई भी आयुर्वेदिक वाला नहीं करेगा। आजकल आयुर्वेद भी ओवर द काउंटर मिल रहा है, बट दैट्स नॉट आयुर्वेद। तो ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब लगा रहे हैं। अभी हमारी जीवा हेल्थ ऐप भी हमने बना दी है, एंड थ्रू द ऐप वी विल बी अवेलेबल टू यू एंड वी विल बी ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज। तो हमारा पैशन यही है कि घर घर में आयुर्वेद जाए और हर व्यक्ति के पास आयुर्वेद जाए। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी सिक टू अडॉप्ट आयुर्वेद। आयुर्वेद मीन्स आयु प्लस वेद। इट्स ए नॉलेज अबाउट आयु। व्हाट इज आयु? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, चार चीजें, बॉडी, सेंसेस, माइंड एंड सोल। This is the knowledge about body, senses, mind, and soul. So, those of you who have a body, who have senses, who have mind, who have soul, Ayurveda is for you. In brief, I always say this is a manual. This is an instruction manual. जैसे आप कोई फोन खरीदते हैं तो बुकलेट आती है ना उसकी, how to use it. So ये जो पूरा सिस्टम है, इसकी बुकलेट है आयुर्वेद। तो हर आदमी को आयुर्वेद आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो आपको मिजरी आएगी, सफरिंग आएगी, बीमारी आएगी। आयुर्वेद आपके साथ होगा तो बड़ा स्मूथली आपकी लाइफ गुजरेगी, क्योंकि आयुर्वेद में 8 ब्रांचेज हैं। हर चीज के लिए अलग ब्रांच है। एक स्पेशली आप लोगों के लिए ब्रांच है, आई एम नॉट श्योर कि आपको मालूम है कि नहीं। 8 ब्रांचेज में से एक ब्रांच है जिसको कहते हैं रसायन शास्त्र, ब्रांच ऑफ रिजुविनेशन, हाउ टू स्टे यंग। बुढ़ापा आए ना बिल्कुल, और बुढ़ापा आए भी तो वो जवान की तरह, जवानी की तरह आप जिए। देयर आर सो मेनी फॉर्मुलेशंस दैट यू कैन टेक when you are in that elderly age, when you are aging. So उसको कहते हैं healthy aging, longevity. Correct. How to attain longevity, but healthy longevity. तो ये आयुर्वेद सिंपल है, सरल है। आपने जो ट्रायो की बात कर रहे थे वो थोड़ी मेरी बीच में रह गई। तो मैंने आपको बताया बॉडी, माइंड, सोल, उसके बाद फूड, स्लीप एंड रेगुलेशन, देन वात, पित्त, कफ, उसके बाद सत्व, रज और तम, और उसके आगे चले जाइए, देखिए बहुत गजब का नॉलेज है, वेरी नाइस। उसके आगे चले जाओ, जो इन सब को कंट्रोल करता है उसको कहते हैं प्राण, तेजस, ओजस। ये 3 शक्तियां बहुत सटल लेवल की एनर्जीज हैं। व्हाट इज प्राण? प्राण इज द लाइफ फोर्स। सो हाउ डू आई एनहांस माय प्राण? एवरी डे यू मस्ट प्रैक्टिस 15-20 मिनट प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, उज्जयी प्राणायाम करिए, भ्रामरी करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। जब आप दिन में भी बैठ करके कुछ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जस्ट ब्रीथ डीप, ऐसे गहरा सांस। एवरी सेल ऑफ माय बॉडी नीड्स प्राण। ऑक्सीजन चाहिए। ब्रेन में ओल्ड एज में ब्रेन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, डिजेनरेशन होता है, डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर्स। लैक ऑफ प्राण इज द रूट कॉज। जितना आपके ब्रेन में प्राण कम होगा वहां ड्राइनेस हो जाएगा, लुब्रिकेशन का कमी होता है। एल्डरली एज में लुब्रिकेशन बहुत चाहिए। सिर में मालिश करो, नाक में तेल डालो, कान में तिल का तेल घर में रखो, पूरी बॉडी में ऑयलिंग करिए, क्योंकि हमारे बॉडी में भी 3 स्टेजेस हैं। अभी मैं प्राण, तेजस, ओजस की बात पहले फिनिश करूं, फिर उसके बाद मैं आपको 3 बॉडी के भी 3 स्टेज हैं। तो प्राण हो गया एक। दूसरा तेजस। तेजस कहते हैं अग्नि की जो सूक्ष्म फॉर्म, फायर।
Tejas is very, very important for digesting things. Especially, in your age, there are a lot of emotional problems. इमोशनल कंडीशंस बहुत होती हैं, कई बार बच्चे बाहर हैं बिकॉज दे हैव टू गो, जॉब करना है, हम लोग यहाँ अकेले हैं, तो इमोशनली वी आर वेरी ड्राई, यू कैन से वी आर वेरी अनहैप्पी। तो कभी कभी हम छोटी सी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इमोशंस को कैसे कैसे आप डील करेंगे, इमोशनल ट्रॉमास को कैसे डील करेंगे, यू हैव टू डाइजेस्ट देम। द प्रॉब्लम इज पीपल हु हैव लो तेजस, दे कैन नॉट डाइजेस्ट, they carry all the emotional baggage with them। तो तेजस को बढ़ाने का एक सरल उपाय बता रहा हूं आपको। प्राण का तो समझ आ गया आपको, प्राण बढ़ा सकते हैं, प्राणायाम करिए। और प्राण ऑल्सो कम्स थ्रू योर फूड। फ्रेश फूड जितना भी आप खाएंगे, फ्रेश नेचुरल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स फ्रूट्स, उसमें भी प्राण शक्ति होती है। आप एक पीस अगर दाल का एक दाना लेंगे, उसको अगर जमीन में डालेंगे तो उससे पौधा निकलेगा, बिकॉज प्राण शक्ति है उसमें। तो इसलिए हम आयुर्वेद में कहते हैं कि फ्रेश खाइए, सात्विक खाइए, क्योंकि वो भी प्राण देगा आपको। केवल प्राणायाम से नहीं मिलेगा, उससे भी मिलेगा। सन ऑल्सो गिव्स यू प्राण एनर्जी, द एयर ऑल्सो गिव्स यू प्राण एनर्जी, वाटर ऑल्सो गिव्स यू प्राण एनर्जी। तो जितना प्राण आपके शरीर में ज्यादा होगा, उतना वात बैलेंस रहेगा। वात और प्राण का कनेक्शन है। और ओल्ड एज में वात बहुत ज्यादा परेशान करती है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, या फिर कॉन्स्टिपेशन, जितना भी मूवमेंट का प्रॉब्लम है वो सब ओल्ड एज में आता है। तो प्राण शक्ति को जितना बढ़ाएंगे उतना वात बैलेंस तरीके से काम करेगा। और दूसरा चीज मैंने बताया, लुब्रिकेशन बॉडी का करिए। तेजस के लिए आपको क्या करना है, तेजस बढ़ाने के लिए वेरी सिंपल, मेडिटेशन करिए। कोई भी मेडिटेशन करिए। हमारा एक जीवा मेडिटेशन है, जीवा मेडिटेशन आप यूट्यूब पर टाइप करेंगे आपको मिलेगा, बड़ा अच्छा मेडिटेशन है। इट्स अ मेडिटेशन बेस्ड ऑन लव, कंपैशन, हाउ यू कैन लव योर हार्ट, लव योर लिवर, लव योर किडनी, हाउ यू कैन हील योरसेल्फ। अच्छा मेडिटेशन है, मेडिटेशन करिए। दूसरा है तेजस बढ़ाने का तरीका, जिसको हम कहते हैं साइलेंस, मौन, मौन व्रत। सो मौन डजंट मीन कि आप मुंह से मौन है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, नहीं। कंप्लीट साइलेंस। जब भी हो सके शवासन करिए, मेडिटेशन करिए। डोंट जस्ट फालतू में कुछ विचार नहीं लाना है। तो उससे आपका तेजस बढ़ेगा। तेजस बढ़ेगा तो बुद्धि काम करेगी। योर बुद्धि इज ऑल्सो लाइक फायर, एनालाइज करती है। कई बार बोलते हैं ना कि लेक्चर बहुत अच्छा था, कुछ हजम नहीं हुआ, तो हजम कौन करता है उसको? दैट फायर, दैट तेजस। यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग तेजस टू डाइजेस्ट थिंग्स। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, उसको हजम करना पड़ता है। हजम नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे फिर आप। और तीसरा है ओजस। ओजस इज आवर इम्यूनिटी। फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर डिटर्मिनेशन, विल पावर, आत्मिक बल, मनोबल, शारीरिक बल, ये ओजस है। ओजस इज द एसेंस ऑफ द फूड दैट वी ईट। जो भी खाना आप खाते हैं वो अंदर जाके पचता है, फिर उसके टिश्यूज बनते हैं, ब्लड, मसल्स, बोन्स, और ये सारी टिश्यूज का जो एसेंस है, दैट इज द वाइटल फ्लूइड कॉल्ड ओजस। तो अगर प्राण नरिशमेंट अच्छा है तो वात ठीक रहेगा, अगर तेजस ठीक है तो पित्त अच्छा रहेगा, पित्त से बीमारी नहीं होंगी, और ओजस ठीक है तो कफ ठीक रहेगा। तो मैंने आपको मूल मंत्र बता दिया, सरल। वात पित्त कफ में जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्राण, तेजस, ओजस को आप रोज नरिश करिए बैठ करके, तो यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी हेल्थी। और इससे आगे की जब हम लेवल पर जाते हैं तो हम पहुंचते हैं आत्मा। द गुड न्यूज फॉर टुडे इज दैट I am not the body, I am not the mind, I am आत्मा। क्योंकि I always say this is my body। और जब आप 5 साल के थे तो बॉडी आपकी अलग थी, अभी बॉडी बदल गई है पूरी, बट यू आर स्टिल द सेम पर्सन। करेक्ट। 7 साल में हमारी बॉडी की सारी सेल्स मर के नई सेल्स आ जाती है, बिकॉज ओल्ड सेल्स डाई, न्यू सेल्स कम। सो आफ्टर एवरी 7 years you are a new person physically, but you are the same person। so who is this person who is never changing? This is atma। बॉडी तो चेंज हो रही है आपकी, रोज चेंज हो रही है। इसी तरह से माइंड भी चेंज होता रहता है। दैट मीन्स आई एम ऑल्सो नॉट द माइंड। कल आपके माइंड में कुछ था, आज कुछ है, परसों कुछ और ही आएगा। सो हु एम आई?
I am soul. Just let me finish, Sumit ji. This is very interesting. सोल जो है उसमें भी ट्रायो है उसमें भी तीन शक्ति है. वैसे तो टेक्निकली उसको बोलते हैं सत चित आनंद, पर मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूं. क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है जीवा, ज्योति, प्रेम, लाइफ, लाइट एंड लव. ये सोल के अंदर होता है. बिकॉज ऑफ सोल आई एम अलाइव. जैसी सोल निकलेगी सब आपका हार्ट, लंग्स, किडनी सब ठीक ठाक है, लेकिन सब काम करना बंद कर देते हैं. Because the life in this body is because of soul. It's very interesting. The light in this body is also because of soul. कभी आप कोई डेड पर्सन देखेंगे तो उसके चेहरे पर कोई ग्लो, लाइट कुछ नहीं हो, बिल्कुल पेल, डल, ब्लैक हो जाता है. तो हमारा जो चमक है, हमारा जो एक तरह से लाइट है हमारे अंदर, दैट इज वाइब्रेंसी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके पीछे सारी दुनिया मरे जा रही है, लव. पीपल डोंट नो दैट लव इज a property of the soul. It is not in the body. You cannot love the body. This is the biggest pragya parad that we make, and that's why we suffer. अगर बॉडी से प्यार हम कर सकते होते, जो आजकल लोग कहते हैं I love you. I love you means I have to, or literally people say I have fallen in love, which is a very right sentence. Fallen means from soul I fall down into the body and make love. Because in love you cannot fall. You cannot say I have fallen. In love you always rise. तो ये जीवा, ज्योति, प्रेम, लाइफ, लाइट और लव, ये तीन प्रॉपर्टीज सोल की होती हैं, और ये तीन प्रॉपर्टीज गॉड में होती हैं. तो when I realize that what is my true identity, then I also realize that my true beloved, my eternal beloved is God. Whatever you believe in, it's up to you. There's no discussion about that. जिसमें भी आपका प्रेम है, जिसमें भी आपका लव है. Some people just love the nature, that's fine. That's also God. जो भी आप जिसमें भी, but you have to make that connection, and that is my eternal beloved. तो ये आयुर्वेद यहाँ तक ले जाता है हमको. And I can say that this is what is the real purpose of becoming healthy. Otherwise, if I ask you a question, why do you want to become healthy? Why? Most people want to become healthy so that they can become unhealthy again. ज़्यादा खा सकें, ज़्यादा enjoy कर सकें, इसलिए लोग सोचते हैं मुझे health चाहिए. नहीं, that's not the purpose. Because when you are healthy, then you can see that I am this is my body, this is my knees, this is my back. My means it's not me, this is my mind, and I am soul. ये basic बीमारी जो हमारी है, if I tell you one single disease that we have is avidya, ignorance. And it's not just ignorance. I would say, ignorance means that I don't know. The problem here is that what I know is not right. जो मैं समझता हूं कि I am this body, this is not the right knowledge. अविद्या का मतलब है यहाँ ignorance भी है, और दूसरा meaning है wrong knowledge. I perceive myself to be something which I am not. यहाँ से बीमारी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरी फाउंडेशन ही गलत है. फाउंडेशन गलत है तो मकान जो बनेगा वो भी गलत बनेगा. So this is all Ayurveda. Don't be surprised. I am not giving a spiritual lecture. This is all Ayurveda. So ये आपका ट्रायो का आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा. And even in our life, childhood, youth and elderly. Childhood में कफ है, youth में पित्त है, फायरी है, elderly में वात है. दिन के 3 हिस्से हैं, मॉर्निंग, नून, इवनिंग. कफ, पित्त, वात. रात के 3 हिस्से हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइट, अगेन कफ. मिडल पार्ट ऑफ द नाइट, कई बार रात को कई लोगों को उठते हैं, भूख लगी होती है बहुत, अग्नि तेज है. मिडल ऑफ द नाइट, फायर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. मिडल ऑफ द डे, फायर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड ऑफ द डे, अगेन वात. So this trio, and if you go into formulations, Triphala, Trikatu, there's so many formulations with this 3. So number 3 is somehow very favorite in Ayurveda. That is so sweet. I can say on behalf of all of us that the way Dr. Saab you presented the whole world in such a simple and lucid manner.
इन पूरी ट्रायंगल्स के बीच में बहुत बहुत डिटेल्स हैं, नुआंसेस हैं, निटी-ग्रिटीज हैं, but I think the simplicity in which you explained everything is so beautiful. If I were to ask a question, Dr. Saab, that हम लोग इस टाइम पे पिछले 15 महीने से COVID, and we are all a lot of elders who have gone through COVID, जिनको COVID हुआ था, plus obviously many of our elders have got vaccinated. Vaccination के बाद they are still there. We are all listening to a lot of stories about the third surge and so on. What has been your experience, Dr. Saab, on COVID? How do you think, what should elders be, particularly precautionary क्या करना चाहिए, both जिनको नहीं हुआ है और जिनको हो गया है? Post COVID relapse is something that many of us are worried about. Okay. बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको कोविड हुआ है, आपका क्या राय है, क्या सजेशन है उनके लिए? देखिए, whether you have already encountered COVID और आपको नहीं हुआ है या वैक्सीनेशन लिया है या नहीं लिया है, there is only one thing that you have to always understand. ऐसी सिचुएशन से आप कैसे लड़ सकते हैं? अगर आपको इन्फेक्शन से बचना है या इन्फेक्शन आपको हो गया है और आपको ज़्यादा सीरियस ना हो, या फिर आप रिकवर कर चुके हैं और अभी भी आपको प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो एक शब्द आयुर्वेद में आता है, उसको आज की भाषा में इम्यूनिटी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल शब्द है, इट्स कॉल्ड व्याधि क्षमत्व. व्याधि कहते हैं डिजीज, क्षमत्व मीन्स द स्ट्रेंथ दैट has strength which can overpower the disease or which can fight the disease. तो ये अगेन ये जो हमारी व्याधि क्षमता जो है, इसको बढ़ाना है हमको. इसको बढ़ाने का मैं सिंपल तरीका बताता हूँ. चाहे आपको कोविड हो चुका है, क्योंकि जिनको कोविड हो चुका है उनके साथ मेन प्रॉब्लम, बहुत लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत लोगों को कमजोरी बहुत आ रही है, वीकनेस बहुत आ रही है, लंग्स खराब हो गए, बहुत सारे ऑर्गन्स खराब हो गए. तो हर उसमें जो है हमको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है. आयुर्वेद में जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 3 लेवल हैं अगेन. शारीरिक स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, मनोबल, मेंटल स्ट्रेंथ, एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ विच इज आत्मिक बल. तो इसमें आप शारीरिक स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएंगे? आप बहुत सिंपल तरीका. स्ट्रेंथ तो खाने से ही मिलेगी, लेकिन खाने से नहीं मिलेगी, खाना पचने से मिलेगी. People say that you are what you eat. No, मैं आपको बोलता हूँ, you are not what you eat, you are what you digest. आपने खा तो बहुत अच्छा लिया पर पचा नहीं, वो पचा नहीं तो आपको एसिमिलेट नहीं होगा बॉडी में. So therefore what is that strength within us जो पचाती है, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर, पाचक अग्नि, जठराग्नि. हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. और जैसे हम एज करते हैं, it starts to become weak around 40. 40 साल में जब लोग जाते हैं ना, तो उनको गैस बननी शुरू होती है, एसिडिटी होती है, डायबिटीज आ जाती है, ब्लड प्रेशर, ये सब यहीं से शुरू होता है. So how can you keep your fire strong? Before eating a meal, just eat a small piece of ginger. छोटा सा अदरक का टुकड़ा चबा लीजिए. और you can make small pieces of ginger, fresh ginger, उसका छिलका उतार के छोटे छोटे टुकड़े और लेमन जूस में सोक करके एक बॉटल में रख लो. 4-5 दिन बाद फिर दोबारा बना लो उसको. जिंजर इज ए वेरी नाइस एपिटाइजर. यू कैन ड्रिंक ऑल्सो जिंजर टी, या फिर 1 कप पानी में थोड़ा फ्रेश मिंट डाल दीजिए, मिंट पी लीजिए. आजकल गर्मी है, एक वाटर बॉटल ले लो, इन्फ्यूजन बॉटल्स भी आती हैं, उसमें थोड़ा फ्रेश मिंट, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, लिटिल स्पाइस, उसका स्लाइस ऑफ लेमन, थोड़ा क्यूकम्बर, ये डाल दो. बहुत बढ़िया पानी दिन भर पीते रहिए. अगर बॉटल नहीं है तो जग में भर के डाल दो, ग्लास का जग. और जब थोड़ा मौसम बदलेगा, व्हेन इट इज थोड़ा सा ठंड आती है, तो एक वाटर अभी भी बना सकते हैं उसको. अभी गरम ना पिए तो ठंडा करके पिए. तो 1 लीटर पानी, उसमें 1 चम्मच सौंफ होती है ना, फेनल, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच फ्रेश जिंजर. 4 चीजें लेनी है, फेनल, क्यूमिन, कोरिएंडर एंड जिंजर फ्रेश. बॉयल इट फ्यू मिनट्स, आफ्टर फिल्टर इट. मैं एडवाइस ये करूंगा कि गुनगुना पिए उसको. अच्छा, एक थर्मस रख लो, थर्मस में भर लो, थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहिए, चाय की तरह से. आपकी अग्नि, आपकी गैस, आपकी सब पाचन, कॉन्स्टिपेशन
सब खत्म, बिकॉज अग्नि इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स अग्नि के विपरीत वाली चीजें नहीं खानी है, ठंडा नहीं लेना है कुछ भी. नो आइस, कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर, आइसक्रीम, ये सब अवॉइड करो, बिकॉज जैसे ही जाएगा आग बुझ जाएगी. आग बुझी तो what happens when you can't digest the food you have eaten? Sometimes people complain कि मैं थोड़ा सा भी खाता हूं तो heaviness होता है इधर, everything is sitting here. When you cannot digest the food, आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए. The undigested food creates a mucus type of toxic material in my small intestines, जिसको हम बोलते हैं आम, आमा. आम कभी कहते हैं ना स्टूल में आम आ रहा है, म्यूकस. So आम is the cause of all diseases, because it's not a natural waste, it's an unnatural waste. नेचुरल वेस्ट तो आपके यूरिन से, स्टूल से, पसीने से बाहर निकल जाएंगे, उनका चैनल बना हुआ है, वो कलेक्शन होकर के they'll be thrown out of the body. That is the automatic system. But for ama there is no channels, and I say ama is the mama, it's the mother of all diseases. ये आपके हार्ट में जाएगा तो ब्लॉकेज कर देगा वहां, उसी को कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं. ये आपके लंग्स में जाएगा तो एक्सपेंशन नहीं होगा, अस्थमा हो जाएगा. जोड़ों में जाएगा अर्थराइटिस हो जाएगा. आपकी बड़ी आंत में जाएगा कोलाइटिस कर देगा. कहीं पर भी जाएगा वहीं जाके ब्लॉकेज करेगा, चिकना पदार्थ होता है. गले में जाएगा तो फेरिंजाइटिस करेगा, यहाँ नाक में साइनोसाइटिस करेगा. सो यू शुड नॉट allow this arm to be formed in your body, come what may. यहां से बीमारी शुरू होती है. And this arm is not limited to only the body, it's also in the mind. When you are eating with mind all the time, बॉडी में तो हम फिर भी थोड़ा रुक जाते हैं, कुछ आधा घंटा रुक जाते हैं, 1 घंटा रुक जाते हैं. ऐसे तो दिन भर खाते रहते हैं लोग, वो गलत है. आपकी एज में तो 2 ही टाइम खाना चाहिए, सुबह 9-10 बजे खाइए, शाम को 6-7 बजे खाइए. बीच में मत खाइए. पानी पी लो, थोड़ा जूस पी लो, कुछ नींबू पानी पी लो, अपना ये डिटॉक्स वाटर जो मैंने बताया ये पी लो. The more your food is digested, the more long life you will have. Eat less, live longer, ये मंत्र है. लेकिन माइंड से तो हम खाते ही रहते हैं. 1 मिनट भी खाली बैठेंगे तो टीवी ऑन करेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, ये करेंगे, कुछ सोचेंगे. वी आर कॉन्टिन्यूसली ईटिंग, सो द माइंड में भी वो डाइजेस्ट नहीं होता ना, वहां भी आम बन जाता है. सो वी गेट मेंटल कॉन्स्टिपेशन. जैसे आम से कॉन्स्टिपेशन होती है, मेंटल कॉन्स्टिपेशन मतलब कुछ नहीं निकल रहा है बाहर, कुछ जा भी नहीं रहा है, कुछ बाहर नहीं. बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन जो होता है, दैट्स ए कॉन्स्टिपेशन. या मेंटल डायरिया हो जाता है, बहुत कुछ चल रहा है, थॉट्स, नींद नहीं आ रही है रात को, सब कुछ निकले जा रहा है. ऑब्सेशन हो जाता है, ओसीडी, कितने नाम, बड़े बड़े अच्छे फैंसी नेम है. डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ऑब्सेशन, एडीडी, एडीएच, दीज आर ऑल मेंटल आर्म. तो माइंड में भी हमारे आर्म नहीं होना चाहिए. तो अग्नि को मजबूत रखना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए. एंड देन सेकंड थिंग इज यू हैव टू इंक्रीज योर ओजस. बस 2 ही चीजें हैं, अग्नि मजबूत रखिए, आर्म नहीं बनना चाहिए, और ओजस को बढ़ाना है. ओजस के लिए एक फॉर्मूला बताता हूं आपको. आप ले लीजिए 9 रेजिन्स, 9 किशमिश, 7 आलमंड्स, 7 बादाम, 5 डेट्स, 3 वॉलनट्स, अखरोट, और 1 कैश्यू नट, काजू. ऐसे नंबर बताया है, कोई जरूरी नहीं है आपको काउंट करना है. ऐसे थोड़ा मतलब कहने का, एक किशमिश, बादाम, खजूर, अखरोट और एक काजू, ये रात को पानी में भिगो दीजिए. ये आपका बेस्ट नाश्ता हो गया. सुबह इनको छील करके, बादाम को चबा करके, साथ में अगर दूध पीते हैं, दूध, ओजस बढ़ेगा आपका. च्यवनप्राश खाइए. हमारे यहाँ जीवा में फ्रेश आंवले से च्यवनप्राश बनाते हैं. 1 चम्मच च्यवनप्राश रोज खाइए. अगर शुगर है तो शुगर फ्री भी मिलता है. च्यवनप्राश बहुत बढ़िया. ओजस कैप्सूल मिलते हैं हमारे यहाँ जीवा में, बहुत बढ़िया. ओजस कैप्सूल एक रोज खा लीजिए. बहुत सारे हैं, शिलाजीत है, देयर सो मेनी प्रोडक्ट्स यू कैन फाइंड, देयर इज नो प्रॉब्लम. ऑनलाइन भी मिलता है, ऑनलाइन जाके ऑर्डर कर सकते हैं आप. और तीसरी चीज, एक आपका अग्नि हो गया, दूसरा आपका ओजस हो गया, तो बॉडी लेवल पर हो गया. अब मनोबल को कैसे बढ़ाएं? मनोबल पे एक ही मंत्र है बस, सत्व गुण को बढ़ाना है. सात्विक, जितना आपका मन सात्विक होगा, सात्विक मीन्स योर माइंड इज काम, क्लीन,
pure, it's not having any agitation, not having any kind of negativity, positive thoughts, उतना ही आपका जो है तो सात्विक भोजन करिए, सात्विक चीजें देखिए, ऐसी चीजें मत देखो, नेगेटिव चीजें। अगर आपको न्यूज देखने में प्रॉब्लम होती है, मत देखो न्यूज, कुछ नहीं है उसके अंदर, कोई अच्छी चीज नहीं है। वॉच समथिंग, रीड समथिंग स्पिरिचुअल, और कुछ नहीं तो अच्छा गाना गाइए, गाना गाइए, म्यूजिक बजाइए, पुराने गाने सुनिए, समथिंग कामिंग, समथिंग रिलैक्सिंग, एजिटेशन नहीं। आजकल इतना ज्यादा ये अनरेस्ट क्यों हो रहा है दुनिया में, भारत में भी, क्योंकि सब कुछ ही राजसिक हो रहा है, एवरीथिंग इज राजसिक, म्यूजिक भी राजसिक आ गया है। तो माइंड के लेवल पर वो करना है, और सोल के लेवल पर भी एक ही मंत्र है, जस्ट लव, लव योर सेल्फ, लव द एनवायरमेंट, लव द नेचर। आपने जो भी ये बात पूछी पेंडेमिक के बारे में, आयुर्वेद में एक पूरा चैप्टर लिखा है पेंडेमिक के ऊपर, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 5000 साल पहले उन्होंने लिख दिया था, द रूट कॉज ऑफ पेंडेमिक, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड टाइम पोल्यूशन। टाइम का भी, ये जो काल चल रहा है ना, ये भी पोल्यूट हो गया अभी आजकल, कुछ नहीं है, जिसको एनवायरमेंट चेंज बोलते हैं लोग, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ये किसने किया, इसका बड़ा अच्छा एक शब्द लिखा है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस, वो कहते हैं अधर्म। अधर्म here doesn't mean irreligious, अधर्म means non discipline, not balanced, it's out of balance, no discipline, सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, रिलेशन का कोई टाइम नहीं, रिलेशन का कोई, we have forgotten all the ethics, all the, कुछ नहीं है। तो ये तो नेचर का रिएक्शन है, ये यहीं पर खत्म नहीं होगा। यू पीपल आर लक्की, आपने अलग टाइम देखा अपने जीवन में, जब लोग जुबान की कीमत रखते थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं भी अभी ज्यादा यंग नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो नियरिंग 60, नेक्स्ट ईयर में मैं अभी 59-60 हो जाऊंगा, तो मैंने काफी चीजें वो देखा है, वो लाइफ। सो दिस इज ऑल, और ये ठीक होने वाला नहीं है। हम लोगों ने एनवायरनमेंट को खराब कर दिया, हम लोग रहते तो इसी में है ना। आयुर्वेद में एक बड़ा अच्छा एक छोटा सा श्लोक आता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो मेरे इसके अंदर है वही बाहर यूनिवर्स में है। 5 एलिमेंट्स इसमें, बाहर भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी लाइफ है, बाहर भी लाइफ है। सो आई एम जस्ट वन सिंगल यूनिट ऑफ दिस बिग यूनिवर्स। जैसे बॉडी में देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, वन सेल इज ए सिंगल लिविंग यूनिट, बट you should look at how the cells behave. They behave with love. उनका एक ही मंत्र है, लव। एक जगह इन्फेक्शन आएगा तो लाखों सेल्स भाग के आती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। अगर एक दिन आपने चीनी ज्यादा खाई तो ब्रेन उधर से, हेडक्वार्टर से पेनक्रियाज को बोलेगा थोड़ा इंसुलिन ज्यादा बना दो, आज ठीक करो इसको। देयर इज सो मच लव इन दिस बॉडी, लेकिन हम लोगों ने कॉन्टिन्यूसली जेलेसी और पता नहीं ईर्षा और ये सब करके उसका पूरा प्रोग्रामिंग खराब कर दिया, तो अंदर कैंसर हो जाता है, फिर दे बिकम कंफ्यूज्ड। ऑटो इम्यून डिजीज आपने सुना है, ऑटो इम्यून? बिल्कुल। व्हाट इज ऑटो इम्यून? योर इम्यून सिस्टम बिकम, द सेल्फ बॉडी इज डिफीटिंग इटसेल्फ, या बॉडी इज अटैकिंग योर ओन सिस्टम, जो आपका इम्यून सिस्टम है। बट कभी कोई आपको बताएगा नहीं कहां से आया है, हम लोग बताते हैं आयुर्वेद में, ये यहां से आता है, जब आपका पूरा माइंड कंफ्यूज है। So that is what is called अधर्म in Ayurveda. So अधर्म का मतलब क्या है कि जब हम दिनचर्या का कोई फॉलो नहीं करते, हम अपनी प्रकृति के अनुसार खाना नहीं खाते। जैसे आप अपनी कार में, पेट्रोल की कार में डीजल भर देंगे तो उसके इंजन के साथ अधर्म कर रहे हो ना आप, तो वो तो रिएक्ट करेगा। तो दिस इज व्हाट वी से इन आयुर्वेदा। तो आपको क्या करना है, अग्नि को ठीक रखना है, और अगर आपको कुछ बने बनाए प्रोडक्ट चाहिए तो जीवा में एक डाइजेस्टॉल है हमारा, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, कुछ भी खाओ डाइजेस्टॉल से पचाओ। उसके साथ आपको आयुर्वेदिक चाय मिलेगी, वो बहुत बढ़िया है। आपको जो है, अगर ओजस के लिए मैंने बताया बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन जीवा, एज आई मेंशन्ड, वी आर द लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन फैसिलिटी। आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हैं, यू कैन कंसल्ट विद आवर डॉक्टर्स with phone, with video, or you can visit our clinics पर भी हम वीडियो कंसल्टेशन का
सहूलियत देते हैं, एंड मेडिसिन विल बी डिलीवर्ड टू योर होम। और जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल हैं, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह सब जगह अवेलेबल हैं। सो आवर मेन गोल इज कि आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ऑल यू हैव टू डू इज टेक वन स्टेप टुवर्ड्स अस, एक कदम आयुर्वेद की तरफ आप बढ़ाइए। आई कैन गारंटी यू, चाहे आपके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपकी कोई क्रोनिक डिजीज है या कोई डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, कोई एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज ट्राई टू चूज आयुर्वेदा। एंड अभी हमारी सौम्यजीत जी से आज मुलाकात हुई, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे दिमाग में कितने आइडियाज थे और उनके दिमाग में भी वही आइडियाज चल रहे हैं। तो आई एम श्योर हम लोग अभी एक दिन मिलेंगे, वी विल मीट अप, एंड आई एम श्योर आपके लिए हम एक कोर्स भी बनाएंगे। हमने आज दोपहर को बात किया था कि जीवा विल क्रिएट ए स्पेशल कोर्स फॉर यू। हमारा केवल देखिए, मेरा पर्सनल क्या है, मैंने शुरू में बोला, मेरे को जो है ना, मेरा एक ही लालच रहता है व्हेनेवर आई मीट सम एल्डर पर्सन, कि मेरे को थोड़ा आशीर्वाद मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए, और किसी चीज की जरूरत। We have a common goal, डॉक्टर साहब, both of us share this common goal। हमारे जितने एल्डर्स हैं सबको पता है यहाँ पे, और जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जीवन में मेरा कोई गोल नहीं है, मैंने शादी भी नहीं किया है, मैंने पूरा लाइफ अपना आयुर्वेद को डेडिकेट किया है। तो आई डोंट डू इट लाइक ए बिजनेस। मैं बिजनेस की तरह से नहीं देखता। ऑफ कोर्स सबको सस्टेन करना पड़ता है, हम सबको एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, पर मेरा मन जो है ना वो सेवा में है, क्योंकि सेवा से ही हमें जो है इस जीवन में जो मोक्ष प्राप्ति होती है ना, जिसको कहते हैं मोक्ष प्राप्ति, लिबरेशन वो वहां गुफा में बैठ के माला जपने से नहीं मिलेगा। लिबरेशन मिलेगा सेवा करने से। किसी की सेवा करिए आप जीव जंतुओं की सेवा करें, आप अपने बुजुर्ग, सबसे बड़ा तो अपने घर में बुजुर्गों की सेवा करें पहले। हमारे यहाँ तो हमारे जो कल्चर में कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव, इससे बड़ा तो भगवान कोई नहीं है। माँ भी भगवान है, पिता भी भगवान है, तो और हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ जाना है हमें, घर में ही तो भगवान बैठे हैं दोनों, उनकी सेवा करें, और अगर नहीं है तो किसी की भी सेवा करें। तो आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक हमारा टाइम हो गया है, अगर कुछ और आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, बताइए। I just wanted to mention, I think हमारे जितने elders हैं, maybe if you can just mute Gaurav if you're there, if you can unmute all the contact. If any of you have any questions, आप लोग में से किसी को कोई अगर कोई सवाल है, please feel free to ask on the chat box as well. But I think the first step, डॉक्टर साहब ने बताया कि पहला जो कदम है, पहला कदम is a little bit of self realization, and that is really the objective of doing elder hour। हमने जब elder hour का concept start किया था डॉक्टर साहब, इस 7:25 पे होने का एक रीजन है, क्योंकि 7:25 वो एक घड़ी है जो सिडनी में रात को 12 बजती है, और वेस्ट कोस्ट में इट इज मॉर्निंग 6 o'clock, जबकि यहाँ पे इट इज द टाइम व्हेन वी हैव आवर डिनर। तो एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि डिनर कभी कभी 10 बजे, 11 बजे, 9:30, 7:30 is the right time technically for having food, because उसके बाद it becomes too late। So the concept is that ये एक वो घड़ी है जिस टाइम पे आपके बच्चे, भले वो सिडनी में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे यूरोप में हो, आप उस टाइम पे कॉल करिए जिस टाइम पे माता पिता घर में खाना खा रहे हो, ताकि यू कैन से हेलो टू देम, यू कैन स्पेंड सम टाइम विद देम। 5 मिनट अगर आप लगा लेंगे, एल्डर्स की चेहरे पे वो जो आपने कहा ओजस आ जाती है, चेहरे में रौनक आ जाती है, चमक आ जाती है, एंड दैट लास्ट फॉर द होल डे। बाकी जो ये आप कम्युनिटी देख रहे हैं, ये कम्युनिटी हर दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती है, सुख दुख में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहती हैं, एंड दे स्टे यंग, एवरीबॉडी स्टेज यंग। कोई एज नहीं है, देयर इज नो एज डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई 85 का हो, कोई 60 का हो, कोई 90 का हो, because here everybody is one large family। that is how we spend time together। and बहुत लोगों ने एक दूसरे से मिले नहीं हैं, many of us have not met each other। I think most of us have not met each other, but we have all met
thanks to technology. तो मैं And आपको यही कहूंगा कि I am also part of you from today. I am very absolutely, and Dr. Saab, जरूरत हो तो I can, with the specific topics. किसी ने यहाँ पूछा है कि we अगर will. कंसल्टेशन के लिए कौन सा नंबर है, तो ये मैंने यहाँ टाइप कर दिया है. नंबर बड़ा आसान है. बहुत बढ़िया. 012 बहुत हमारा बढ़िया. कोड है फरीदाबाद का, और 40400404 4040. बहुत बढ़िया. नहीं तो jiva.com पर जाएंगे तो वहां अभी आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. बहुत बढ़िया. तो जस्ट फॉर आवर एल्डर्स नॉलेज, डॉक्टर साहब और मैं आज दोपहर को बात कर रहे थे, एंड मेरी बिलीफ इसमें ये है कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग हाफ नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, इन द सेंस कि वो कभी कभी डायरेक्टली दे वुड जंप इनटू टेकिंग अ मेडिसिन. एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इतनी गुड साइंस है, इसमें इतनी थ्योरी है, इतनी थिंकिंग प्रोसेस है, वेरी स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग. जैसे संस्कृत में एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स. I almost feel in my little knowledge of Ayurveda, it is extremely programmatic, extremely like a proper, programming thinking. तो इसमें एक structured तरीके से assessment अगर हर एक लोग करे, if all of our community members can do an assessment, I think the assessment itself is a very powerful thing, because उससे क्या होगा कि realization आएगी कि मेरे जो बैलेंस है वो कहाँ पे, वेयर इज माय बैलेंस, एंड इन रिस्पेक्ट टू माय ओन कंडीशन. हर एक की कंडीशन यूनिक है, एवरी पर्सन इज यूनिक. हर एक की चाहे वो माइंड बॉडी सोल हो, चाहे थिंकिंग प्रोसेस हो, चाहे लाइफ स्टेज हो, क्योंकि हर एक की यूनिक है. और उस यूनिक कंडीशन के हिसाब से रादर देन डूइंग अ सेल्फ मेडिकेशन, it is better that you start with a proper approach, and we will have that chat with Dr. Pratap ji and find a way that IMOHA जो elders हैं, हमारे जो community के members हैं, वो एक structured तरीके से progressively one can become better. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि all diseases can be 100% cured, but काफी improvements हो सकती हैं अगर हम लोग थोड़ा structured तरीके से करें. And it is not, as he rightly said, it is not just medicine, it is not just food, but also the company we keep, also the discussions we do. हम लोग जो ये हर दिन बात करते हैं, a lot of elders have come back and said that all this emotional trauma of COVID and all that is little less, क्योंकि हम लोग दोस्तों के बीच में, हम लोग आपस में we are there for each other, हंसी मजाक करते रहते हैं हर दिन. We are in a positive ecosystem, and that also helps, because as he rightly said, that is contributing to our mental wellness, emotional wellness, and so on. So Dr. Saab, thank you so much. I know that there are a lot of specific questions, but what I would recommend is that now that Dr. Saab is very much part of the family, and I can tell you that he is extremely busy, and taking time out for all of us is literally a privilege. I have heard stories where people sometimes have to take many months of appointments before we can meet him, because that is the level of travel and constant work that he has been doing. It's a sadhana. It's a sadhana that he's been doing for many years. So really feel privileged that Dr. Saab, you could come, you could share time with us. I think आपने एक nutshell में इतनी vast subject को एक simplicity से समझाया सबको, and I think I am personally inspired to kind of learn a little bit more. I am sure all of us in the group would be inspired as well to at least give it a try, think through it, because this is not about this is about our own life. This is about our time that we spend here, and if we can make it better, why not? Because usse it's not just ourselves, but आसपास का जो ecosystem है सबको उससे फायदा होगा. So if there is any specific question, I'm very happy to take it up. बता दूं कि there is Yes, Dr. Sir. lot of my lectures available on YouTube. आप YouTube में जीवा आयुर्वेदा चैनल में जाएंगे तो कई हजार मेरे लेक्चर्स हैं वहां पर. सो यू कैन अलग अलग टॉपिक्स पर हैं, और किसी का कोई भी पर्सनल अगर कोई प्रॉब्लम है, तो जैसा अभी सौम्यजीत जी ने बोला कि इन आयुर्वेदा द ट्रीटमेंट इज नॉट लाइक जनरल. ऐसा नहीं कि मैं आपको, आप बोलेंगे मेरे जोड़ों में दर्द है तो मैं आपको बोलूंगा ये गोली खा लो. ये आयुर्वेद नहीं है. अगर 5 लोगों को जोड़ों में दर्द है तो 5 को अलग अलग दवाई दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द पर्सन सिचुएशन. और उसके लिए अच्छा रहेगा कि आप एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट फोन से, वीडियो से, जैसा भी आपको लगता है वो बुक करा लो, एंड डेफिनेटली पूरा एक आपका एनालिसिस करके फिर दवाई वगैरह
डाइट चार्ट पूरा आपके घर भेज दिया जाएगा। एंड यू नो एट सम पॉइंट हम लोग चाहेंगे कि एक जीवाग्राम में भी एक कैंप किया जाए आप लोगों का, दोज ऑफ यू आर विलिंग टू कम। बहुत अच्छी जगह है। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आई एम ऑलवेज हालांकि काफी बिजी शेड्यूल रहता है, बट व्हेनेवर विल बी पॉसिबल आई विल कम बैक और कोई अलग टॉपिक लेकर। और हमारे दूसरे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं। एवरी फ्राइडे हमारा 2 से 3 एक टॉक होता है जीवा आयुर्वेदा फेसबुक पेज पर, 2 से 3 एवरी फ्राइडे कुछ नया टॉपिक आता है। और जीवा आयुर्वेदा जो फेसबुक पेज है उसमें ऑलमोस्ट एवरी डे आपको कोई रेसिपी, कोई टिप, कोई आयुर्वेद का, तो आपके लिए बहुत सारा हम लोग कंटेंट देते रहते हैं। टीवी शो तो मेरा होता ही है। टीवी शो में आजकल जो चैनल्स पर संजीवनी पर चल रहा है, अभी जी हिंदुस्तान पर अभी शुरू होने वाला है, और बहुत सारे चैनल्स पर चलता रहता है प्रोग्राम। तो वो तो हमारा गोल वही है कि लोगों को आयुर्वेद, असली आयुर्वेद क्या है, ऑथेंटिक आयुर्वेद क्या है, उसका पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी थोड़ा बहुत नाम आगे आयुर्वेदिक लगा दिया, हर्बल लगा दिया, अब सब चीज के पीछे आयुर्वेद आगे लगा करके उसको आयुर्वेद नहीं, ऐसा नहीं। तो इट्स रियली ए प्लेजर एंड ऑनर टू बी ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। और बहुत अच्छा लगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपके बारे में आज ही पता चला है, बट आई विल लाइक टू लर्न मोर एंड आई विल कम बैक टू यू। और मेरा एक ही लालच है कि मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, दुआएं चाहिए, विच इज समथिंग प्राइसलेस, उसका कोई प्राइस नहीं। So thank you very much. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you for coming, sharing your views. I would like to tell all our elders that we would definitely want to, kind of create a very unique kind of a program for all IMOHA elders, starting with awareness. And then, as you feel that you know more, you are better aware of how we can take care of ourselves, then you can get into consultations and so on and so forth. So on that note, thank you so much, Dr. Saab. Thanks for coming. Thanks for sharing time. You are now part of the IMOHA community, and Yes. Please feel free to welcome, more people, as you are well aware, who are elders. Because the more we are able to take care of elders, the more both you and me will be able to get more and more blessings. Sure. So on that note, thank you so much. Thank you. And wishing all our elders a very good evening. Thank you so much. Thanks for sparing time, and looking forward to the week. All the best. Namaste. Good night. Good night.